Welcome to VC Online PTE classes. We are providing online one-to-one PTE coaching. After enrolling our courses, you will get continuous latest study material along with extended support for next 3 months. Hi guys, this is Virendra Chaudhary from VC School of English, and our today's topic of discussion is reading fill in the blanks with easy peasy ways. But before starting this, please don't forget to subscribe our channel and click the bell icon for more PT related updates. So guys, as I told you that this is our reading fill in the blank strategy, and in this strategy we are going to use some easy peasy strategies to solve the reading fill in the blank. Easy peasy means childish way, so it is very natural and the correct you can say strategy to follow the reading fill in the blank, and it will really thoroughly you will enjoy it when you come to know that how reading fill in the blanks are easy and easy to do. Okay, so types of options normally we get in reading fill in the blanks. Likewise, the first one is grammar based. So as I already told you that grammar is a structure of a language, which is very heart and soul of a language, which is very helpful in terms of to solve reading fill in the blank. If you know the grammar, you can easily solve reading fill in the blank. But as you know that grammar is a very bigger part. मतलब अगर आप पूरी होल ग्रामर पे अगर एक्सरसाइज करने जाएंगे, you need at least 6 months or 1 year to be a master in that. But I will try, like I have discovered some of the strategy. With the help of those strategy, you may able to deal with reading fill in the blanks, which will be very beneficial for you. Are you getting my point? Yes, sir. Now, the second is vocab based. So basically vocabulary based options when we are getting in the reading fill in the blank, that may be pretty difficult to deal with. But as far as my opinion is that to deal with vocabulary issue, we have some other tools which can really help you to deal with the vocabulary issue. Likewise, if you don't know the meaning of the word, then you can do one thing. You can easily extract basically you can easily find out the answer of that particular blank, whether it is based on your vocab part. Likewise, you have to understand the that particular vocab with the suffixes, like the word ending with ion, ify. So these like in the specify. So specify gives you it is all in all एक verb है specify. तो अब आप इसके suffixes अगर आपको पता है कि it is ending with ify, so that means it is a verb. So you can relate that. If you don't know the meaning, कोई बात नहीं, चलता है, there is no issue. अगर आपको meaning नहीं पता है, you can do it easily. कैसे कि आप suffixes पे ध्यान दो. vocab को best way में deal करने का यही तरीका है कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, सब चलता है, देयर इज नो इशू. बट अगर आपको उनके सुफिक्सेस के बेसिस पे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, यू विल गेट हैंडसम स्कोर. अब जैसे कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में ये हमें अब आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होगी कि वेदर इट इज अ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और समथिंग एल्स. फॉर दैट रूल माय ओपिनियन इज दैट आप उनके लास्ट के 3 वर्ड देखो. लाइकवाइज ion says it is a noun, but वो तभी पॉसिबल है अगर आप suffixes पे ध्यान दोगे, उनको लर्न करोगे. लर्न करना, आई एम नॉट सेइंग और आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड इट थॉरली कि आपको हर कुछ याद करना है. प्रैक्टिस करने से once you do practice 1 2 3 4 5 days and on the very 6th day you will come to know that कि यार ये noun है, verb है, adverb है, adjective है या कुछ और है. ठीक है. दूसरा कॉलोकेशन. vocab को हम बीट कर सकते हैं कॉलोकेशंस के थ्रू भी. कॉलोकेशंस आर आल्सो हेल्पफुल टू डील विद vocab इशू. एंड फोर्थ वन इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड. जब हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कहते हैं तो बेसिकली इट इज मोर और लेस ग्रामर स्टाइल ही होता है. उसमें ग्रामर्स का ये देखना होता है
कि वेदर इट इज द सेंटेंस इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और समथिंग एल्स। उसके बेसिस पे हमें अपने जो ऑप्शंस है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि यहाँ पे वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा या नाउन आएगा। सो बेटर है कि आप इसको क्या करो। और दूसरा जो जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को हम दूसरे तरीके से अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हम दूसरी भाषा में बोलेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमें एक ब्लैंक है जिसमें दो ऑप्शन गिवन है, कंस्ट्रक्शन एंड मार्ड। कंस्ट्रक्शन एंड मार्ड, तो अब कंस्ट्रक्टेड एंड मार्ड, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्शन एंड मार्ड, कंस्ट्रक्टेड एंड मार्ड, दो हमारे पास वर्ब दे रखी है, दीज आर V3s। एंड अब हमें वहां पर ऑप्शन डालना है। अब सेंटेंस वहां पर नेगेटिव है और हमारे पास ये दो वर्ब्स पड़ी हैं, एंड वन इज वोकैब एंड वन इज नॉर्मल वर्ड जो हमने बहुत बार सुना है। तो अब इन दैट सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, उसमें जो आपका ऑप्शन नेगेटिव है, मतलब यानी कि वहां पे सेंटेंस जो है आपका नेगेटिव है, तो अब आपने ये देखना है कि वहां कंस्ट्रक्टेड आएगा या मार्ड आएगा। तो आप क्या करोगे, अब देखो जो फिमिलियर वर्ड है उसका मीनिंग पता है आपको कि कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, एंड मार्ड का मतलब आपको पता ही नहीं है। बट कंस्ट्रक्टेड जब हम किसी चीज को बना रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंग। बट मार्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो बट ऑब्वियसली मार्ड का मीनिंग कुछ नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, मार्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड एक पॉजिटिव वर्ड है जो हमें पता है, बट मार्ड का हमें पता नहीं है कि मार्ड है क्या, MARRED। उस केस में आप क्या करोगे, वो मार्ड वर्ड वहां पे सूट कर दोगे बिकॉज इट इज अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि दो ही वर्ड है ना आपके पास। उसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व द ब्लैंक्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द आइडिया ऑफ वर्ब। तो वर्ब को नाउन में कैसे कन्वर्ट करना, दैट आई विल टीच यू टुडे, एंड with the help of these verbs and nouns we are going to solve the exercise. So in the exercise part I'm going to ask questions to everyone, तो जिसका मैं नाम लूंगा वो रिवर्ट करेगा once you done with this, जो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो वर्ब है, वर्ब को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, विद सुफिक्सेस, जैसे एट, ED, EN, IFY, ISE या IZE। सो इन दैट सिनेरियो आप इनके बेस वर्ड देख सकते हो। बेस वर्ड है जैसे कम्युनिकेट, टर्मिनेट, एजुकेट, डोनेट, eradicate. So these words are ending with 8. Now let's move to the next part. ED, communicated, terminated, educated, donated, eradicated. So this is also giving you sense that it is a verb. And more or less some students are getting problem जब वो EN पे आ जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि EN से भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड होती है। तो जैसे कि हार्डन, डार्कन, स्ट्रेंथन, डेफन, शॉर्टन, रिटन, so these are the third form of verb, और सुपरलेटिव डिग्रीज बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो ये भी हमारी एक वर्ब का वो है, फॉर्म है। उसके बाद IFY, so electrify, identify, clarify, satisfy, rectify. The word ending with IFY is also known as verb. उसके बाद memorize, realize, industrialize, socialize, finalize. So this is also known as verbs. अभी इनके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वर्ब्स हैं। एक फॉर्म ऑफ वर्ब और भी होती है जिसको बोलते हैं ING। इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं या कॉन्टिन्यू फॉर्म भी बोलते हैं, या इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे V4, उसको V4 बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम ED की जगह ING ऐड कर देते हैं, कम्युनिकेटिंग, टर्मिनेटिंग, एजुकेटिंग, डोनेटिंग, इरेडिकेटिंग। सो दीज आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब, बट समटाइम्स जो ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एडजेक्टिव वो कब इस्तेमाल होती है, व्हेन वर्ब इज गोइंग टू मॉडिफाई नाउन, तब वो एज अ एडजेक्टिव काम होती
काम आती है। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आईएनजी फॉर्म्स वाली वर्ब्स या ईडी फॉर्म्स वाली वर्ब्स है, ये एडजेक्टिव है टू द नाउन, और कैसे ये मॉडिफाई करती हैं टू नाउन। और इनको बोला जाता है, जो आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं उनको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, और जो ईडी फॉर्म वाली वर्ब्स होती हैं जो एज एडजेक्टिव काम करती हैं उन्हें बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। सो ये हम लर्न करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट रिलेटेड एज अ वर्ब, हमें पता ही नहीं लगता कि ये वर्ब होगा भी कि नहीं होगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट टेम्पलेट में बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं वी आर गोइंग टू कन्वर्ट वर्ब इनटू नाउन, एंड इट्स जस्ट यू विल फील लाइक अ मैजिक कि ये मैजिक हो गया कि हमने वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अभी यहाँ बेस वर्ड है, जो मैंने 4 ही वर्ड लिए हैं, कम्युनिकेट, टर्मिनेट, सर्कुलेट एंड कॉपरेट, ये चारों की चारों वर्ब है। मगर जब हम इनके साथ में ION ऐड कर देते हैं, बेस वर्ड प्लस ION, तो इट विल बी बिकम एज अ नाउन। So word ending with ION is known as noun. So communication, termination, circulation and cooperation. So it becomes a noun. So अब इनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे नाउन की तरह काम करेंगी और कब ये वर्ब की तरह काम करेंगी। ओके, सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल फॉर अ वर्ब। They did not communicate. When we are using as a communicate their intentions clearly. So now it is working as a verb, but when we are adding IN to it, ION it to it, so it is becoming their communication was unclear and I'm not sure of their intentions. So now along with possessive pronoun we are using ION, so that is known as communication. In the next example, now we used of IZE or ISE. सो बेस वर्ड हमने जो लिए हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल से लिए हैं, तो ये जो बेस वर्ड्स जो मैं बता रहा हूं ये वर्ब्स है, इम्यूनाइज, ग्लोबलाइज, लीगलाइज। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ION ऐड कर रहे हैं, सॉरी ATION ऐड कर रहे हैं। तो ATION ऐड करने के बाद ये एकदम फॉर्म ले लेंगे नाउन का, जिस तरह से इम्यूनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लीगलाइजेशन। तो हमने वर्ब में क्या ऐड किया, ATOIN, उसको ऐड करने से दैट बिकम्स अ नाउन। लेट्स टेक एग्जांपल, ऑल द पीपल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 days। नाउ क्योंकि वर था तो हमें इसलिए यहां पर ईडी लगाना पड़ा, बिकॉज वॉज वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ये वेल नोन है। ओके, एंड इन द नाउन एग्जांपल, तो नाउन वाला एग्जांपल है उसमें हम आर्टिकल के बाद नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वी आर यूजिंग the hospitalization of the all people injured in the accident lasted 3 days. So now see the range. पहले हमने उसको verb की तरह इस्तेमाल कर दिया, but जब हमने उसमें ATION ऐड किया तो it becomes as a noun. Okay. In the next example, ये देखिए, अब IFY को हम नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसमें कर रहे हैं ICATION ऐड करते हैं। जब IACATOIN ऐड कर देंगे तो वो जो आईफी वाली एग्जाम्पल, ये जो आपकी वर्ब्स है, बेस वर्ड्स है, ये वर्ब का काम कर रही हैं। पर जब हम ICATOIN ऐड करते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सर्टिफिकेशन। सो यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस। सो पहले हम उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। इन द नाउन वी आर यूजिंग इट लाइकवाइज, दिस नीड्स सिंप्लीफिकेशन, it's too complicated. So you can see that range of words की बेस वर्ड इस्तेमाल करके वर्ब को हम नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही हमारे पीटी के एग्जाम में भी होता है कि हमें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि यार ये नाउन है, वर्ब है, कैसे है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द नाउन। और ये वर्ब से नाउन कैसे बन गई, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन आती है, ये तो पैसिफाई एक वर्ब है, तो अब हमने इसमें ये पैसिफिकेशन या इलेक्ट्रिफिकेशन
ये कैसे बन गया, नाउन कैसे बन गया। तो वो चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी इस एग्जाम्पल से। ओके नेक्स्ट, अब ये एक्सरसाइज है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हम स्टार्ट करेंगे राजपाल कौर से। राजपाल जी, Yes. फर्स्ट पार्ट आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, और फिर इसमें लॉजिक दोगे कि यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शंस लिए हैं क्यों लिए। तो पहला पोर्शन आप क्लियर करो लेक्चर, चलो। Okay. Most homes in that city had been electrified. या इलेक्ट्रिफाइड, यस, Yes, पर because इलेक्ट्रिफाइड का कोई रीजन? because in this it used as a verb. हम्म, Had plus been plus verb की third हाँ form. हाँ, और So that दूसरा, I use electrified. हम्म, And the electrification, या क्यों? because in this it used as a noun. बिकॉज आर्टिकल के इमीडिएटली बाद, जैसे मैंने प्रीवियस अगर लेक्चर आपने नहीं अटेंड किए तो आर्टिकल के बाद Yes. में इमीडिएटली यू नीड अ नाउन, बट अगर Yeah. आर्टिकल के बाद में इफ यू हैव अ ब्लैंक देन यू हैव अ नाउन, देन यू हैव टू लुक फॉर एडजेक्टिव। Okay. ओके, सो दीज आर द Yes. सम रूल्स। दूसरा, इलेक्ट्रिफाइड लगाने का दूसरा रीजन क्या है, सिटी एक नाउन है, नॉर्मली हैड बीन, हैज बीन, हैड बीन अगर कहीं पे भी लगा होगा, अगर नाउन डायरेक्ट नाउन दिया हुआ है, if the direct noun is given then you have to use ing, continue, v4 Okay. इस्तेमाल करना है। मगर अगर वो, Yes. हाँ, मगर वो अगर आपने वो नहीं इस्तेमाल हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्ट नाउन नहीं है, या तो आर्टिकल के बाद आता है या किसी नाउन से वो है, क्या बोलते हैं, जैसे माई होम्स इन दैट सिटी, दैट सिटी, तो दैट जो यहाँ पर लग गया सिटी से आगे, वो एक प्रनाउन लग गया। तो नाउन से पहले कभी भी प्रनाउन आता है या आर्टिकल आता है तो वो पैसिव हो जाता है। दूसरा, हम यहाँ पर देख सकते हैं बाय लगा हुआ है, तो बाय भी Yes, ऑल्सो sir. गिव्स यू Passive. सेंस कि आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है, v3 या v2 देखना है, ठीक। ओके, This is a passive sentence. जी ये पैसिव सेंटेंस। Okay. अक्लेमा, गो फॉर सेकंड। Hello. या गो फॉर सेकंड अक्लेमा, सॉल्व दिस। First one is simplification, sir. ओके, व्हाई? द सेम It has to be a noun because it's following by the article. रूल, या वेरी गुड। And मेरा B, it has to it has to be simplify them. Please simplify them हाँ, व्हाई? because it has to be a first form of what you say, verb. यप, सिंप्लीफाई देम। इसका बेसिक रीजन क्या होता है, इसका बेसिक रीजन यही है कि जैसे Usually command में first form verb आता है, sir. कमांड में। दूसरा, जैसे कि मैंने अकलीमा जो है मेरी वो है लॉ स्टूडेंट है, ये काफी मेरे लेक्चर लगा चुकी हैं, सो इनको काफी हद तक इस बारे में नॉलेज दिया है एंड इन्होंने काफी ग्रो किया है, पहले से काफी ग्रूम किए हैं। सो इफ आई एम नॉट अकलीमा, am I right? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Anyone else, please? Mafdal Hussain, solve the third blank. Okay. If not Mafdal Hussain, Poojan Patel, can you? I am available, sir. Mufaddal. Yeah. Go for third one. The third one is the full form of the full cost of hospitalization, because full cost is noun, so we need some verb over here. नहीं सर, अभी आपने The full cost of सर hospitalization. हॉस्पिटलाइजेशन इज अ नाउन सर, तो वर्ब कैसे बन गया? लिसन टू मी केयरफुली, जिस भी वर्ड को जैसे हमने हॉस्पिटलाइजेशन बोल रहे हैं, तो व्हेन द वर्ड एंडिंग ion, द वर्ड लास्टिंग विद ion ऑलवेज नोन Yeah, एज it will go ahead. नाउन। और दूसरा यहाँ पर Yeah. प्रपोजिशन ऑफ लगा है, उससे पहले फुल कॉस्ट एक नाउन है, तो प्रपोजिशन ऑफ के आगे या पीछे कभी भी हमेशा नाउन आता है, ध्यान रखना इस चीज का। Okay. So that is why it is a hospitalization. Okay, go for next Okay. one. 3 gunshots victim were hospitalized. Third form of word. Yeah.
क्योंकि वर लगा है, वर के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता। किसी ने आपको अगर समझाया है तो वो शायद गलत समझाया। वॉज वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो Second form of हॉस्पिटलाइज्ड verb. आएगा। हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ Okay. वर्ब नहीं होता है वो, पर सेकंड Okay. फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। Mhm. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ग्रामेटिकली नॉर्मली क्या आता है कि कहने को बोल देते हैं कि V3, वॉज वर्ब के साथ में V3 या V3 आएगा, ठीक है। बट आइडली V3 या V4 ज्यादातर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि V3 या V4 आता है। बट अगर आप एक्चुअल ग्रामर पे जाओ तो V2 आता है, V3 नहीं आता है। तो गलत है जो आपको बोल रहे हैं। Okay. Got your point. Okay, next. Poojan Patel, solve this, the fourth one. Poojan Patel, can you do that? Santosh Kaur, please solve this fourth one. क्या कर रहे हो यार? फिर तुम्हें आएगा कैसे? फिर बोलोगे कि सर दोबारा क्लास लगाओ। फिर अगर पार्टिसिपेशन नहीं दिखाओगे तो क्या होगा आपका? Can I, sir? Community was complete. या प्लीज जिन्होंने बोला कहना ही सर वो करें पहले। Yeah, first one is immunization. Okay. There is a noun. Yeah. And second one is immunize. इम्यूनाइज नहीं आएगा, इम्यूनाइज आएगा। Right, immunize. इम्यूनाइजेशन फर्स्ट में आएगा, बिकॉज देखो पोजेसिव केस कोई भी आ जाए, पोजेसिव प्रोनाउन भी आ जाए, पोजेसिव नाउन भी आ जाए, तो हमेशा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो नाउन ही होता है। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हीज, हर, इनके साथ में हमेशा जो पोजेसिव नाउन आता है, सॉरी पोजेसिव, ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ में हमेशा नाउन आता है। ठीक है, और टू है तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इम्यूनाइज आएगा यहाँ। ठीक है, Right. ओके नेक्स्ट। ये कौन करेगा? Me. करो सर फिर। फिफ्थ में क्या आएगा देखो, जल्दी करो, डालो। जल्दी करो सर, टाइम कम रह गया, ये बंद हो जाएगा। ओके राजपाल, आप ही ट्राई करो इसको। Yes, sir. Cooperative. Sir, corporation. Cooperatively. हाँ जी, बोलो मैम, बोलो क्या बोल रहे थे? Sir, B point में तो corporation exactly suit है, corporation because their corporation is essential to नहीं मैम, successful completion. मैम ध्यान रखना हमेशा लाइफ में एक चीज का ध्यान रखना, नाउन सिर्फ तभी आता है जब वहां पर ऑब्जेक्ट ना हो। Okay. जो सेंटेंस बना होता है वो बना होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। अगर आपको वर्ब जो आएगी वो तभी आती है जब आपको आगे ऑब्जेक्ट गिवन है। जैसे राम ईट्स मैंगोज, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर, मैंगोज अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो ईट करके जो वर्ब है वो वहां कभी नहीं आती। जैसे Okay. जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, राम हैज अ कार, तो यहां पर ऑब्जेक्ट गायब है, यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ब गायब है, Yes, सॉरी sir. वर्ब गायब है, कारण क्योंकि Verb वहां नहीं। पर नाउन का रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल के इमीडिएट बाद नाउन आता है। तो जहां पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो वहां पर आपका वर्ब Verb. आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर अब वर्ब तभी आता है जब वहां आगे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और Okay, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, फिर उसमें आपका वर्ब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आएगा कॉर्पोरेटेड, क्या बोलते हैं इसको, Cooperative. कॉर्पोरेटेड। Okay. Cooperative. हाँ, Cooperative. नेक्स्ट में आप डालो, नेक्स्ट में क्या है? Corporation.
हाँ, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन आ गया ना यहाँ पर, देयर। Yes. देयर किसी तरह का दिखा रहा है कि देयर किसी तरह का को रिलेशन दिखा रहा है, मतलब उसके उनकी पोजेशन की तरफ इशारा करता है कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू देयर, समथिंग लाइक दिस। कैसे बोलेंगे, एक एग्जांपल दो अगर। Possession बता रहे हैं। हाँ, तो देयर कॉपरेशन इज एसेंशियल, उनका सहयोग जरूरी है। तो उनका यानी किनका, उनका क्या चीज है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं उनका पोजीशन शो करता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वन। ओके गाइस, लास्ट 1 minute is there, so we need to re-continue. Please join once again. So in this thing, always two, along with two, you have to look for globalized. Yani that means first form of verb आएगा यहाँ पे. Okay, go for next. The protester took issue with the increasing dash. Globalization इसमें आएगा. Yeah. No. Globalization of the international monetary system. जो ये international monetary system है, एक तरह से इसको noun phrase भी बोल सकते हैं. और जैसा कि मैंने कहा था कि preposition के बाद में you have to look for a noun, before noun और after noun. noun ही आता है. अगर noun नहीं आ रहा है तो noun phrase जैसा कुछ आएगा, बट आएगा जरूर, ये ध्यान रखना. और अब आप देख सकते हो the increasing globalization. तो जो इंक्रीजिंग यहां पर जो काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये भी एक आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इज ऑल्सो नोन एज नाउन फ्रेज. और उसके बाद में भी देख सकते हो ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन. मॉनेटरी सिस्टम एक कॉमन नाउन हो गया, और इंटरनेशनल जो है वो एक तरह से आप उसको प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं, और ये एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है इंटरनेशनल. ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ऑफ से पहले भी प्रेपोजिशनल नाउन फ्रेज है और ऑफ के बाद भी नाउन फ्रेज है. तो यहां से आइडेंटिफाई होता है कि हमको ये ब्लैंक इस तरह से सॉल्व करने हैं. तो मार्क माई वर्ड्स कि अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हो इन चीजों का, यू विल इजिली हैंडल द रीडिंग फिल इन द ब्लैंक. Clear to all of you? No. One question. Yep. So you said issue with the six वाले का जो B part है, issue with the increasing globalization. यहाँ पर the क्या कर रहे हैं? You said some specific. The article है ना सर यहाँ पे? नहीं, एक article उसके साथ you use some word like increasing and then globalization is noun. Increasing globalization. मैंने क्या कहा कि जो noun phrase होता है वो combination होता है आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन और नाउन, उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज. तो अब अगर आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग की अगर पोजीशन जाननी है, जैसे कि मैंने क्या कहा था अभी 2 मिनट पहले कि आर्टिकल के इमीडिएट बाद आपको नाउन चाहिए होता है इमीडिएट बाद. बट अगर इन एनी केस आर्टिकल के बाद में ब्लैंक है, देन यू हैव अ नाउन. That means you need an adjective. एक और केस बता रहा हूं. अब आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव गिवन है, then you have to look for noun. तो अब जो यहाँ इंक्रीजिंग है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का. ठीक है, तो अब आप ऑफ से पहले भी देख सकते हो एक नाउन फ्रेज है और ऑफ के बाद भी एक नाउन फ्रेज है. द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक नाउन फ्रेज है. यू कैन चेक दिस. आप गूगल जाओ. आप देखो, मैं ये नहीं कहता कभी भी किसी भी स्टूडेंट को जो भी मेरा लेक्चर अटेंड करता है, मैं उनको कहता हूँ कि जाओ आप मेरे जो मैंने जो चीजें कही हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, गेट बैक टू मी. अगर आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, कोई डाउट है, गेट बैक टू मी फॉर द सोल्यूशन. कि सर वहां ऐसा दे रखा, आप ऐसा कह रहे हो, तो आप चेक करो. मैं कभी ऐसा नहीं, मैं बड़ा ओपन हूं अपने इनको लेके, और ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ ये मैंने सारी एक्सरसाइज करने के बाद ही आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. दूसरा, मेरा आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है, मेरे पास जो भी रीडिंग के स्टूडेंट आते हैं, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, इवन दो लिसनिंग, मेरा जो रेशियो रहा है, जो स्कोर रहा है लोगों का, वो सर
लोगों का स्पीकिंग में 97 87 90 के आसपास में रहा है। उसके बाद आ जाओ रीडिंग में 83 85 का स्कोर, खुद मैं 90 का स्कोर लेके बैठा हूँ। उसके बाद आ जाओ राइटिंग में 87 से नीचे मेरा आज तक का स्कोर नहीं आया है। मेरे जो आप लोग कहते हो ना, लोग कहते हो कि सर मॉक टेस्ट परफॉर्म करे, कोई मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे दो मांगते फिरते हो, या ये सो कॉल्ड वेबसाइट से आप पिंग करके उतारते हो, उनको बोलते हो कि हम आपका मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं, इसमें हमारे इतने स्कोर आ रहे हैं। दे आर टोटली यूजलेस। आप पियर्सन का मॉक टेस्ट लो, परफॉर्म करो, अगर आपके 75 से ऊपर स्कोर आता है, मैं ओपनली चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर आप वैसा ही परफॉर्म करके आते हो उसके अंदर पियर्सन के एग्जाम में, मैं ओपनली चैलेंज करके बोलता हूँ आपका स्कोर 80 में जाएगा, 80s में जाएगा। पियर्सन का मॉक इस्तेमाल करो, बिकॉज दैट इज टू टफ देन एक्चुअल पियर्सन एग्जाम। और उसमें अगर किसी बंदे ने स्कोर अच्छा कर लिया, 75 से प्लस स्कोर जा रहा है, तो आपके आराम से 8 बैंड ईच आ जाएगा। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ये एबीसी मॉक खरीद लेते हैं, दे आर वेस्टिंग देयर मनी। ये कभी भी आपको क्लियर कट पिक्चर देंगे ही नहीं। तो ये कभी भी आपको अच्छा स्कोर दिखाएंगे नहीं। क्यों? अगर आपको ये स्कोर अच्छा दिखाएंगे तो आप इनके पास नहीं चले जाओगे, मतलब सॉरी, इनसे अलग नहीं चले जाओगे, इनके पास कोचिंग के लिए कैसे जाओगे? तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, मुझ पर भी ट्रस्ट मत करो, स्ट्रेटजीज जो बता रहा हूँ जाके रिसर्च करो इनके ऊपर कि सर ने ये बताया था, ये होता है कि नहीं होता है, जाके चेक करो यार। इतने समझदार तो हो ना। कोई आपको एक बार बेवकूफ बना देगा, 2 बार बना देगा, तीसरी बार तो आपको पता लग ही जाएगा ना कि वो कितना बड़ा मास्टर है। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, जो मैंने ऑफ वाली ये दी है, ऑफ की कई एग्जांपल मैं आपको ब्लैंक्स के अंदर दिखा सकता हूं। और ये जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, एक एक स्ट्रेटजी ब्लैंक्स में रिपीट होती है। ओपनली चैलेंज तक बोल रहा हूं, कोई भी ब्लैंक उठा के ले आओ मेरे पास। आपने आपके प्रीवियस लेक्चर में ये पूरा समझाया था सर जी, ऑफ, और ये फ्रेसेस आपने बताया था आपके एक लेक्चर में, मैंने अटेंड किया था जिसमें आपने पूरा समझाया है सर। तो डिड यू फाइंड इट यूजफुल और नॉट? वेरी यूजफुल सर। आप आई कैन आपको से यहाँ पे जो भी है आपके लेक्चर्स जरूर अटेंड करें। नहीं मैम, आप मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो? मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ सर। नहीं, आप तो आगे बढ़ चुके हैं, मगर कौन सी कंट्री से? ये मैं इंडिया की हूँ सर, पर अभी दुबई अभी में कहाँ हूँ रह रही? सर। दुबई में? जी जी सर। So I believe, Aklima, if I'm not wrong, people are claiming you have cleared your exam, isn't it or not? Say me truly. If still you want to make your knowledge, if you still want to एक्चुअली सर grow something like मैंने this, पीटी इतना कर लिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को और आगे बढ़ना है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद माय स्कोर, सो मैं इसलिए और लिख रही हूँ। आई हैव बुक नहीं पेड ठीक है। अगेन रिसेंटली। अकलीमा, मार्क माय वर्ड, आपको कोई भी मुझे कुछ भी आके बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो दैट सर। ठीक है, इसीलिए मेरे को लोगों ने क्लेम किया कि इसने एग्जाम क्लियर, तो मैं कहा फिर क्या होगा, आ रही है तो आने दो, मुझे हार्म नहीं पहुंचा रही ना। एज फार एज इफ यू आर नॉट हर्टिंग मी, यू आर माय फ्रेंड। बेशक सर। अगर आप मेरे से सीख के मुझे ही काटते हो, फिर मुझे दिक्कत। नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, उल्टा हम 10 लोगों को बताते हैं सर आपके बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दैट इज माय कंसर्न। बाकी अकीमा बिंदास आओ, आपका ग्रुप है, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोकेगा नहीं। इवन परेश को भी मैं ये कमांड दे दूंगा कि अकीमा कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, तो यू नीड नॉट टू वरी, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। और जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लेक्चर्स में आओ, अपना अगर कोई इनपुट दे सकते हो तो गिव योर इनपुट, आई डोंट माइंड। ठीक है, ओपन एंड है मेरी तरफ से। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट वन, लास्ट ब्लैंक। नाउ सॉल्व दिस। एनीबडी हु वांट्स टू सॉल्व दिस, सॉल्व दिस। वो सॉल्व करे जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया। जितेंद्र, या जितेंद्र, प्लीज सॉल्व दिस। memorize of facts. कैसे बोल सकते हो आप मेमोराइज आएगा?
Memorizing of facts. Memorize. Sir, is it memorization? देखते हैं आंसर, देखते हैं। आओ, मेमोराइजेशन आएगा सर। अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बता के हटा था ना, प्रेपोजिशन ऑफ के बाद और ऑफ से पहले एक जैसे वर्ड आते हैं। फैक्ट्स क्या है? व्हाट इज फैक्ट्स? फैक्ट्स इज अ नाउन, प्लूरल नाउन। और मेमोराइजेशन क्या है? नाउन। चेक कर लो, गूगल करो। हो सकता है सर गलत बोल रहे हो, गूगल करो, चेक करो। 2 मिनट लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट ज्यादा बोलते हैं, 2 सेकंड लगते हैं। गूगल करो, मेमोराइजेशन आएगा। ऑफ से पहले और ऑफ के बाद एक जैसे ही वर्ड आते हैं, स्पेशली नाउन्स आते हैं। ठीक है। नेर रोट का मतलब होता है बार बार, रेपिटिशन, कोई बार बार हम चीज को याद करते हैं। मेयर रोट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। Let's students memorize the new vocabulary for the next few weeks. Can you, हाँ क्या क्या बोला? Memorize the new vocabulary. मेमोराइज या मेमोराइज्ड? Memorize. मेमोराइज्ड आएगा सर। लास्ट वीक्स लास्ट बोल रहा है ना, नेक्स्ट वीक्स लास्ट। मेमोराइज्ड। कभी भी, अब ध्यान रखना, एक चीज और बताने जा रहा हूं। कभी भी आर्टिकल आता है और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन या नाउन आता है आर्टिकल के बाद, एंड देन यू हैव अ ब्लैंक, देन यू हैव टू लुक फॉर V3 या V2। और ये जिस तरह का सेंटेंस है उसको हम V2 बोल सकते हैं, क्योंकि V2 में सिंपल पास्ट टेंस में फॉलो करती है। जब वॉजवर का हम इस्तेमाल करते हैं जब ING लगेगा। अगर वैसे हम अगर सेंटेंस लिखने जाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है सिर्फ सेंटेंस के अंदर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V2 होगा। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आपसे। अब ये मुझे बताओ कि इसी पे काम करूं या कुछ और लेके आऊं, मतलब इसी तरह से लेके आऊं चीजें, या मैं कुछ और करके लेके आऊं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीडबैक। ये इंटरेस्टिंग था या इसमें मुझे और थोड़ा एडवांसमेंट लाना चाहिए? प्लीज गिव योर इनपुट। यस सर, बोले सर। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल है। इसी को मुझे कंटिन्यू करना, जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं उतना। आप तो बहुत आसान एक्सप्लेन करता है, तो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। सर व्हाट्स योर नेम सर? Yes sir, I also recommended. जी उन्हेश। तो मैं इसी पे और काम करता हूँ, मैं आगे के जो लेक्चर हैं इसी तरह के बना के लेके आता हूँ। इसी तरह करो सर। हाँ, बिकॉज इजी टू ग्रास्प है, इजी टू ग्रास्प है। हाँ यस सर, इट इज हेल्पफुल। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब मैं ये कंफर्मेशन इसलिए ले रहा था